और चलिए अब बात करें कश्मीर फाइल्स पर एक बार फिर से मचे बवाल की, जहां विभिन्न कश्मीरी पंडित संगठनों और कार्यकर्ताओं ने ज्यूरी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और इजरायली फिल्म निर्माता नदव लापिद की आलोचना की है। रूट्स इन कश्मीर संगठन के नेता अमित रैना ने कहा कि नदव लापिद को इस फिल्म के बारे में ऐसा बयान देने का कोई अधिकार नहीं है। इजरायली फिल्म निर्माता नदव लापिद ने फिल्म द कश्मीर फाइल्स को एक प्रोपेगेंडा और बेहुदा करार दिया था। वहीं भारत में इजरायली राजदूत ने कहा कि कश्मीर फाइल्स को लेकर इजरायली निदेशक का बयान उनकी निजी राय है, हमारी स्थिति अलग है। I enjoyed yesterday evening, most of the evening, very much in Goa because it was a very positive, I think, demonstration of the wonderful relations between India and Israel. Minister Takur we had there was praising our cooperation. We had the Fauda people there. And everyone was very happy. I think that one private person with his own opinion shouldn't change anything here, and that's what I was trying to tell, that the relations are much stronger than this individual, another individual. Each one is entitled to his own opinion. My opinion is obviously different. I'm very happy in India. I think that the relations will continue regardless of this or another individual. And we will continue to celebrate our cooperation and our culture closeness and our unity rather than focusing on disturbing noises. मुंबई में इजराइल के राजदूत कोबी शोशानी ने अनुपम खेर से मुलाकात की। इस मौके पर दोनों ने मीडिया से इजरायली डायरेक्टर द्वारा फिल्म द कश्मीर फाइल्स को लेकर दिए गए बयान के बारे में बात की। And I felt after I was in Goa last night and I've heard this speech which we don't accept, none whatsoever. The first person to call, and I did right away in the morning, to call Anupam Kher, my friend, and just to apologize. To apologize about speech that was a private opinion, maybe with some European juries, but nothing to do with the state of Israel, officially and unofficially. I tweeted, I sent some clips that I had with Pallavi and Pallavi Joshi and Vivek, the director of the Kashmir file, that I did a year ago. And I want to make in a very clear voice that I'm a diplomat, I cannot intervene in internal Indian discussion. But definitely, I want to say that it's not a propaganda. Definitely, I would like to say that it was very strong film and to give the place to the people who suffer in Kashmir. I know that Anupam Kher, his family came from Kashmir, and it's also connected to this issue. So I feel that in every country which has a freedom of speech, there are people who think they will use a platform like this. If he himself does not like a film, you are most welcome to say it. But if you are the jury member, you cannot you cannot use the word vulgar propaganda. I think it's a vulgar remark by that person, and who himself is vulgar and who himself is an opportunist who used this platform to put forth his propaganda or whatever he believes in. The world has identified with the film, and the pain and the problem of Kashmiri Pandits have been going on for the last 32 years. But in answer to your question, it has strengthened the ties. Because when somebody opposes certain things, you discover how together the two countries are. For the amazing, very brilliant gesture by Council General to have come here proves that this is a relationship, and it is a relationship of pain. Because both the countries have suffered exodus and Holocaust. So, which is the गोवा के सीएम ने भी लापिद के बयान की निंदा की है। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने द कश्मीर फाइल्स पर कहा कि चेयरमैन ज्यूरी के बयान की निंदा करता हूं, उन्होंने अपनी पावर का मिसयूज किया है। जिस तरीके से द कश्मीर फाइल्स को लेकर फिर से विवाद खड़ा हो गया है, चेयरमैन ज्यूरी ने जो
इसके ऊपर बयान दिया है कि ये वल्गर और भद्दी है, उसको किस तरीके से देख रहे हैं आप? चेयरमैन जूरी लिपिड का मैं स्टेटमेंट का कंडेम्ड करता हूं और खुद उनके एम्बेसडर ने कहा है मिसयूज, तो मैं कहता हूं कि उन्होंने उनके पावर का मिसयूज किया है। ये स्टेटमेंट उन्होंने इस प्लेटफॉर्म पे नहीं करना। और आइए अब जानते हैं कि द कश्मीर फाइल्स पर फिल्म मेकर चांद जी का क्या कहना है। It is normally been found that any international event held in India has one or two or some, normally we find some rotten apple who comments on various things unrelated to them. Of late, the latest recently held IFFI at Goa, in the concluding observation by the Israeli filmmaker Nadav Lipit, who ridiculed the film Kashmiri File, calling it vulgar and propagandist. Coming from an Israeli who have seen genocide all along, and by saying the genocide on Kashmiri Pandits, he is belittled his own genocide. The films made on Holocaust by Oscar-winning directors, should we say that those were also vulgar, propagandist, and it did not happen? Very mean, it's very condemnable, atrocious, preposterous from him. Nadav has reached the nadr of his thinking, and it's really sad, saddening, very disturbing to see, Nadav talking about the genocide not. द कश्मीर फाइल्स को लेकर चल रहे विवाद पर अभिनेता और निर्देशक अजय कौल ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। अजय कौल मुंबई से, और मैं बहुत इस बात से दुखी हूँ जो अभी लापिद फिल्म मेकर जो है इजराइल के, उन्होंने जो अभी कमेंट किया कश्मीर फाइल्स को लेकर के, और हम कश्मीरी पंडित इससे बहुत ज़्यादा दुखी हैं और बहुत ज़्यादा भर्त्सना करते हैं इस इनके कमेंट की, कि इन्होंने ये बात दिखाता है कि ये असंवेदनशील व्यक्ति है जिसने ऐसा कमेंट किया है। और कश्मीरी पंडितों पर जो अत्याचार हुए हैं, अगर उनको वो समझ नहीं आ रहा है और वो दिख नहीं रहा है और कह रहा है कि कश्मीर फाइल्स को जो है वो फिल्म फेस्टिवल ऑफ गोवा में आई कैसे, इसको जगह कैसे मिली फिल्म फेस्टिवल में, तो ये इस आदमी की समझ को दिखाता है कि ये कितना संवेदनशील है। और हम लोग इसकी बिल्कुल मैं कंडेम करता हूं इनके स्टेटमेंट को, और बाइकआउट करने की भी, इनकी सारी फिल्मों को बाइकआउट करने के भी सबसे। श्रीनगर के मेयर जुनैद दमट्टू ने फिल्म कश्मीर फाइल्स पर अपने विचार रखे हैं। द कश्मीर फाइल्स को प्रोपेगेंडा बताने पर उन्होंने इसकी निंदा की है। श्रीनगर के मेयर जुनैद आजम मत्तू हमारे साथ हैं। जुनैद साहब, पहला सवाल कश्मीर फाइल्स को लेके, एक फिल्म आई, उस पर एक बड़ा बवाल हुआ, लेकिन अब जिस तरह जूरी मेंबर ने ये कहा कि ये बिल्कुल एक साइडेड फिल्म थी और ये खराब फिल्म थी, वल्गर फिल्म है, आपका कमेंट जानना चाहेंगे क्योंकि आपने देखा, आप बोल भी चुके हैं। मैंने कश्मीर फाइल्स नहीं देखी है, उसके कुछ एक्सर्प्ट्स और क्लिप्स देखी हैं। मुझे कश्मीर फाइल्स का कंटेंट क्या है नहीं पता है, उनने शायद देखी होगी। कश्मीर फाइल्स की डिबेट में एक कैजुअलिटी ये हुई है कि जो रियल इशू है कश्मीरी पंडित सफरिंग्स का, वो बैक बर्नर पे चला गया है। हम कश्मीर फाइल्स की बात करने लग गए, लेकिन कश्मीरी पंडित भाई बहन जो अपने घर से निकाले गए, जिनका एक्सोडस हुआ, उनकी जो तकलीफ है, उनकी जो दुश्वारियां हैं, उनका जो स्ट्रगल है, वो एक हकायक पे मबनी स्ट्रगल है। दैट इज रियल, दैट पेन इज रियल, उससे कोई डिनाई नहीं कर सकता।
अब क्रिएटिव ऑटोनॉमी होती है एक आर्टिस्ट की। कश्मीर फाइल्स पे जो मैंने सुना है कि कुछ चीजों को गलत पोर्ट्रे किया गया है, कुछ चीजों को एग्जैजरेट किया गया है, एक वन साइडेड व्यू दिया गया है, मैंने देखा नहीं है, लेकिन ये चीजें होती रहती हैं, एक आर्टिस्टिक इंडस्ट्री, क्रिएटिव इंडस्ट्री में होती रहती हैं। जहां तक हमारा सवाल है, स्पेशली एज कश्मीरीज, हमारा फोकस इस पे होना चाहिए कि हमारे कश्मीरी पंडित भाई बहन अपने घरों में वापस कैसे आए। फिल्म को वल्गर और फिर उसको प्रोपेगेंडा कहना, मैंने देखी नहीं है, वो जूरी मेंबर ने क्यों कहा है वो उसका जवाब तो वही देंगे। मैंने फिल्म नहीं देखी है, ना ही मेरा कोई इरादा है देखने का। मैं आपको फिर से वही कह रहा हूं कि बुनियादी जो मसला है। आगे बढ़ेंगे। अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेता रफी मीर ने कश्मीर फाइल्स को लेकर चल रहे विवाद पर अपने विचार रखे हैं। देखिए, जब पहले मूवी रिलीज हुई और इसके बारे में जब कमेंट्स आए तो अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार थे इस बारे में। कुछ लोगों ने फिल्म को पसंद किया, कई लोगों ने इस पर क्रिटिसिज्म किया। जहाँ तक हमारा ताल्लुक है, हमने इस फिल्म को एक कमर्शियल वेंचर समझा। जब फिल्म बनाने वाला फिल्म बनाता है तो हम ये समझते हैं उसको एंगल होता है इसको कमर्शलाइजेशन का, पैसा लेने का। तो इसमें ऐसा मटेरियल डाला गया है जिसके कमर्शियली शायद ठीक हो, लेकिन कई लोग, कई सोसाइटीज या कई पॉलिटिकल पार्टी जिनको सूट करता था कि ये पॉइंट ऑफ व्यू आगे चले, उन्होंने इसको आगे बढ़ावा देने की कोशिश की, लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की। लेकिन इस कमर्शियल वेंचर में ऐसे डिपिक्ट की गई हैं चीज़ें जिससे सोसाइटी में और आग बढ़ सकती है। 90s में क्या हुआ बजात खुद, या 90 के बाद यहाँ कश्मीर में क्या हालात रहे, नोबडी कैन क्लोज द आइज। लेकिन सारी कम्युनिटी को, सारे लोगों को, सारे यहाँ पर रहने वालों को इसके लिए जिम्मेवार नहीं ठहराया जा सकता है। तो इसलिए फिल्म को आम हालात के साथ कनेक्ट नहीं किया जा सकता है। अब उन्होंने किस पैराए में ये कहा, लेकिन हमारा बिल्कुल ये साफ है कि ओवर एग्जैजरेटेड है और इसमें जो भी फिल्म बनाने वाला हो, बोलने वाला हो या किसी ऐसे काम से ताल्लुक़ रखने वाला हो, जलते हुए आग पे तेल डालने की ज़रूरत नहीं होती है। हालात बेहतर करने के लिए हमें आगे होना चाहिए ना। ये कमर्शियल एक्टिविटी है इसलिए हम ज़्यादा उसको कह नहीं सकते हैं, लेकिन ओवरऑल ये एक नेगेटिव असर है इसका। सर, आपने जो कश्मीर फाइल्स मूवी वो खुद देखी, आपने देखा कि किस तरीके से उसमें क्या कुछ दिखाया गया है और आपको कहाँ तक लगा कि उस मूवी में सच्चाई है? देखिए, ज़ाती तौर मुझे लगता है फिल्मी, जब हम फिल्म की बात करते हैं या ड्रामा, हम डरावने ड्रामाज देखते हैं, हम हॉरर मूवीज देखते हैं, कई लोग फिर डर भी जाते हैं उन सारी एक्टिविटी से, फिर एंड पर हम कहते हैं कि एक ड्रामा था, एक फिल्म था। मुझे लगता है आई डोंट सी एन आई टू आई विद दिस। मुझे लगता है एग्जेजरेटेड हुआ है, इतना यहाँ पे उस तरीके का खून खराबा और वो बेदर्दी सबके दिलों में नहीं है। एक तबका आया, कुछ लोग आए जिन्होंने वायलेंस की, विच हैज़ बीन कंडेम्ड बाय आवर सोसाइटी। मेजॉरिटी लोग उसके खिलाफ थे, लेकिन हालात ऐसे पैदा किए गए, लगता था उस वक्त सब लोग इसमें शामिल है, जो कि बिल्कुल सही। और ब्रेक के बाद खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। दिवंगत पूरन कृष्ण भट्ट के भाई अश्विनी भट्ट ने लापित के बयान पर गुस्सा और निराशा जाहिर की है। अश्विनी ने कहा है कि उनके बेकसूर भाई पूरन भट्ट को हाल ही में शोपियान में आतंकवादियों ने मार डाला था। उन्होंने कहा था कि तथ्यों को ज्यादा देर तक छुपाया नहीं जा सकता, सच्चाई की हमेशा जीत होती है। इसराइली फिल्म मेकर नडाव लपेड ने जिस तरह से कश्मीर फाइल फिल्म पर अब शब्द बातें कही और इसको वल्गर और प्रोपेगेंडा के साथ ताबीर किया, उस पर कश्मीरी पंडित बहुत आहत हैं। खासकर जिस तरह मैंने कहा कि जो कश्मीरी पंडित समाज में जो लोग इस टेररिज्म के विक्टिम रहे हैं, जिन्होंने अपने लोगों को खोया, अपनों को खोया है, वो बहुत ज़्यादा अपसेट हैं, डिसअपॉइंटेड हैं और नाराज हैं। मेरे साथ इस वक्त है अश्विनी भट्ट, ये पूरन कृष्ण भट्ट के भाई हैं। पूरन कृष्ण भट्ट, मरहूम पूरन कृष्ण भट्ट, जिनको अभी हाल ही में चूदरगुंड एरिया जो शुपियां में है वहाँ पे उनकी हलाकत की गई थी, उनको हलाक किया गया था वहाँ पे। ये उनके भाई हैं और इनसे हम बात करते हैं। अश्विनी जी, जो नडाव लपेड हैं, उन्होंने कहा कि ये जो जूरी हेड थे वो फिल्म मेकर है इसराइल के। उन्होंने गोवा में जो फिल्म फेस्टिवल में ये कहा कि जो कश्मीर फाइल है ये प्रोपेगेंडा है, झूठ है। उन्होंने कहा कि कोई इस तरह से चीज़ें नहीं हुई है। आपको क्या, आप तो खुद विक्टिम है इसमें कुछ? हाल ही में मेरा भाई मारा, क्या वो झूठा था? हाँ? या और भी कोई सानिया हो गया, नाड़ी मारा का, या और कोई, ये क्या झूठ है क्या? वो इस सच को दबाना चाहता था और कुछ नहीं।
इसकी बातों से यही लग रहा है कि वो सच दबाना चाहता है। ये तो सरासर मेरे सामने मेरे भाई को मारा, ये क्या झूठ है क्या? और कुछ नहीं, सब सच है। जो मेरे भाई के साथ हुआ है वो क्या गलत था? दिन दहाड़े 12:30 बजे इसको मारा गया था, वो क्या झूठ है क्या? या नाड़ी मार्ग का वाक़ा था, वो क्या गलत है क्या? ये सब झूठ छुपाने की बातें कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं। बाकी जैसे राहुल भट्ट है, राहुल भट्ट के पिताजी से भी मैंने अभी बात की, उन्होंने भी कहा कि भाई राहुल भट्ट को तो 20 लोगों को क्रॉस करके मारा गया, आपके भाई वहां पे बिजनेस करते थे, उनको मारा गया। क्या लगता है आपको कि ये लोग एक साजिश के तहत इस चीज को छुपाना चाहते हैं? हाँ, और क्या, बाकी कुछ नहीं। ये तो सच बात है, दिन दहाड़ी मेरे भाई को मारा, ये क्या झूठ है? वो आसमान से आ गए, वो भी रास्ते से आ गए, इनको मारा दिन दहाड़े। कोई बात झूठी नहीं हो सकती। अच्छा, तो आप देख सकते हैं कि जो पूरन कृष्ण जो पूरन भट्ट के भाई हैं अश्वनी भट्ट, इनका भी यही कहना है कि जो उनके भाई की हलाकत हुई है और इनके सामने उनकी हलाकत हुई है, तो इसमें क्या झूठ है, इसमें क्या गलत है? और ये जो कोशिश की गई है फिल्म मेकर की तरफ से इसको वल्गर या प्रोपेगेंडा कहने की, इसमें कोई भी बात सही नहीं है। और एक साजिश के तहत ये सारी चीजें हो रही हैं, जिसमें कोशिश की जा रही है कि जो सच्चाई है उसको दबाया जाए और झूठ को आगे लाया जाए, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। कैमरामैन आशु के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। वहीं दिवंगत राकेश पंडिता की पत्नी रूबी पंडिता ने कड़ी आलोचना की है। उन्होंने पूछा है कि राकेश त्राल के लोगों की सेवा कर रहे थे, लेकिन बदले में उन्हें क्या मिला, उनका कसूर क्या था? इस्राएली फिल्म मेकर नवाड लपेट की तरफ से किए गए कमेंट पे हर तरफ से उनकी निंदा हो रही है। मेरे साथ इस वक्त हैं रूबी पंडिता, जो कि राकेश पंडिता, मरहूम राकेश पंडिता की अहलिया हैं, उनकी वाइफ है राकेश पंडिता, जिनको तकरीबन 2 साल पहले त्राल में जो काउंसलर थे, वहां पे बीजेपी के काउंसलर थे, उनको वहां पे हलाक किया गया था राकेश पंडिता को त्राल में। तो उस पर जो आज टिप्पणी हुई है कश्मीर फाइल पर, उस पर हम इनसे बात करेंगे रूबी जी से। रूबी जी, जो नवाड लपेट है, उन्होंने कहा कि कश्मीर में कुछ नहीं हुआ, जो कश्मीर फाइल में दिखाया गया वो प्रोपेगेंडा था, गलत था, झूठा है, आपने अपने पति को खोया है, उनको क्या जवाब देंगे? नहीं, झूठ नहीं है, ये तो बिल्कुल सच है। जिसने अपनी आंखों से देखा है, जो इतना कुछ हुआ है, तो वहाँ पे बहुत कुछ गलत हुआ है, तो क्यों झूठ कौन बोलता है कि झूठ है? सब कुछ सच ही है। जो हमने भी देखा, हम भी छोटे थे, वहाँ पे बहुत मेरे हस्बैंड को मारा, वो क्या झूठ है? इतने आज तक इतने बंदों को मारा, इतने इंसानों को मारा, तो कितने घर इनने बर्बाद किए, तो वो झूठ है? ये तो वो पागल है जो ऐसे बोलते हैं, तो जिनने देखा है जो वही जानेंगे जिन पर बीती है। बाकी ये सच है, बाकी कुछ नहीं, झूठ कुछ नहीं है। जिसने अपने वहाँ पे घर में इतने थे, वहाँ पे जो कुछ हुए 90 से आज तक नहीं थमता है ये मसला, ना इसका मसला कभी हाल हो जाएगा, ना ऐसे का ऐसे ही रहेगा। वहाँ तो बच्चे उनके पास जो घरों में गन है, वो तो वहाँ पे नहीं, वो तो झूठ बोलते हैं, ये सब कुछ मरवाते। जो यहाँ से हिंदू जाता है इसको मारते हैं। वहाँ की हालत कभी सुधरेंगे नहीं, ना आज तक सुधरे हैं, ना कभी सुधरेंगे। ये हालात ऐसे ही रहेंगे, कभी ठीक नहीं होंगी, क्योंकि यहाँ से जो वहाँ के हैं उनको नहीं मानते हैं, ये तो जो यहाँ से जाते हैं उसको भी मारते, जो वहाँ रह रहे पहले से ही उनको भी मारते हैं। तो जिनकी घर बर्बाद हुए तो वही जानेंगे, उन पर क्या बीती है तो वही जानेंगे। बाकी जो बातें करेंगे लोग, क्या उनको क्या पता है कश्मीर के बारे में, वहाँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ? ये हम ही जानते हैं, हम वहाँ के हैं, हम वहाँ रहते हैं, तो हम ही को पता है कि वहाँ क्या हुआ है। जो बाहर से लोग बोल, उनको क्या पता है कश्मीर में क्या हुआ क्या नहीं हुआ? वो तो बोलेंगे ही झूठ, वो तो अफवाहें फैलाते, वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मगर हुआ तो जो हमने देखा या आंखों से सुना है, आंखों से जो तो हम भी छोटे थे जब हम यहाँ आए थे, मगर कान से तो सुना है वहाँ क्या हुआ है। जो आज तक मैंने अपना पति खोया है, वो मुझ पर ही बीती है कि वहाँ पे हमने, ये है उसकी माँ, आपको पता ही है सारा कुछ, तो अब आपसे क्या बोलना है? कुछ सच है, वो सब कुछ सच है, वो कोई भी झूठ नहीं है। डायरेक्टर ऐसे पागल नहीं है, उसने छानबीन की तभी तो पिक्चर बनाई है। जब उसने छानबीन की है, उससे क्या किया है क्या नहीं हमको पता है ना। वो बेचारा वो भी बाहर का है, बम्बई का, उसको क्या पता है? उससे ज्यादा हुआ है, जो उसने तो फिर भी दिखाया ये, उससे ज्यादा हुआ है वहाँ पे। औरतों के साथ, लड़कियों के साथ रेप हुआ है, वो बहुत कुछ हुआ है वहाँ पे। मारा है हर घर में, एक घर के वहाँ पे 2 बंदे उनको मारा है, बच्चों से लेके बड़े तक मारा है उनको, किसी को नहीं बख्शा।
तो घरों घर में आते थे, वहाँ दरवाजा ऐसे तोड़ते थे तो घुस जाते थे, गंदर तो मारते थे, अंदर घुस जाते थे। वो नहीं, वहाँ पे बहुत कुछ हुआ। ये तो आपके ये पिक्चर तो फिर भी बनी है छोटी, इन्हें कुछ दिखाया ही नहीं, इससे भी बहुत कुछ हुआ है वहाँ पे। आपके पति वहाँ गए थे, वो काम कर वहाँ पे काम कर रहे थे, वो तो गांव के लिए काम कर रहे थे। वो यहाँ से गए थे काम करने के लिए, वो पैसे कमाने के लिए नहीं गए थे, काम करने के लिए। वो मेहनती इंसान थे, तो उसको नहीं बख्शा है। उनको पहले थे, उसको ये लग रहा था कि मुझे कोई कुछ नहीं बोलेगा, मुझे कोई कुछ नहीं करेगा। ये तो घरवाले भी उसको बोलते थे कि नहीं भाई, वहाँ पे इनकी, उसने भरोसा किया उन पर कि उसको पूरा भरोसा था कि मुझे कोई कुछ नहीं करेगा। मगर उसको वहाँ पे पीठ पीछे वार किया है, तो ना इसको पता थी कि नहीं, घर में गया तो वहाँ पे पहले से थी, क्या पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वही जानता था। मगर वहाँ पे उसको भी नहीं बचा जिसने काम किया। अब जिसने नहीं किया तो उसको भी मारते हैं, तो वो किसी की सगे नहीं है। कश्मीर फाइल ने तो ऐसा ही दिखाया कि जो इससे ज्यादा, उसने तो फिर भी कम दिखाया ना, उसको कुछ पता ही नहीं ना, उस बेचारे को क्या डायरेक्टर को पता है वहाँ क्या हो रहा है। मतलब फिर भी उसने मतलब कुछ देखा है, तो कुछ किसी से एक दूसरे से सुना है यहाँ पे वहाँ क्या, वो थोड़ी कश्मीर अगर गए भी होंगे फिर भी उसने कम दिखाया है, उससे भी ज्यादा हुआ है। हम ये चाहते हैं कि हम भी यही चाहते हैं कि उनके साथ भी, उनको क्यों नहीं पकड़ते, उनके साथ भी जो हमारे घर खराब हुए हैं, उनके घर क्यों नहीं ऐसे खराब होते हैं, वो भी यहाँ क्यों घूम रहे हैं सारे, हम उनको क्यों नहीं कुछ बोलते हैं। अगर हम यहाँ से जाते हैं उनको मारते हैं, जो काम करे उन्हीं का काम करते थे, वो कौन सा घर का काम करते, उन्हीं को तो सड़कें साफ करते थे, नलके लगा रहे थे, पार्के बना रहे थे, उनको जो यहाँ से जाता है उसको मारते हैं। यहाँ जो वहाँ घूमते हैं उनको क्यों नहीं कुछ बोलता है। ऐसी हुकूमत है, उनको भाई यही वहाँ पे रिक्वेस्ट करती हूँ इनको कि वहाँ पे इनको इंक्वायरी हो जाए, किसके वहाँ पे किसने क्या किया है, तो जिसके घर में जो इनको वहाँ मारते हैं उनको हमको इंसाफ मिले। हमको आज तक कोई इंसाफ मिला। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। तो ये रूबी भट्ट जो मरहूम राकेश भट्ट की वाइफ है, इनका ये कहना है कि ये जो स्टेटमेंट है इससे इनके जख्मों को कुरेदा गया है, उन पे मरहम लगाने के बजाय उसको हवा दी गई है, और ये कंडेमनेबल है। और सरकार से चाहते हैं कि इसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, जो डायरेक्टर है उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए इस फिल्म मेकर के खिलाफ, ताकि ऐसी बातें कोई और फिल्म मेकर आगे ना कर पाए। कैमरामैन आशू के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।